ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की स्तुति हो। आज जो है इन द एब्सेंस ऑफ रेवरेंड डॉक्टर सुरेंद्र सैमुअल, हमारे जो अय्या है, आज उनके उपस्थिति जो है आउट ऑफ स्टेशन है, यहाँ पर नहीं है। इस वजह से जो है उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आज का सर्विस जो है मैं लीड करूं, और आज आपके सामने जो है उनके अनुमति से, उनके परमिशन से परमेश्वर के वचन को आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। क्यों ना इस आराधना को शुरुआत करने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡಿ ಬರುವಂತ ಮಾಡಿದಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ। ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ। ಇಂದಿನದ ವಚನವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ। ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಆಲಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ। ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚ್ ಅಂಬರ್ನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ। ಈ ಸಭೆಯವರ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವ ದೇವರು ನೀನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ। ನಮ್ಮ ಲೇಮೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, WSS ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೌವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ಯೌವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಂತ ನಿನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕರ್ತನೆ। ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾರದಂತೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ನೂತನವಾದ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡು। ನಮ್ಮ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ। ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ವಚನದ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿ ಕರ್ತನೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ। ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಇಂದಿನದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ। ನಿನ್ನ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೂಡ ಮಾತಾಡುವಂತ ದೇವರು ನೀನಾಗಿರುವಂತೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ನಾನು ಸ್ವತಃನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ स्वामी, आमीन आमीन। आज जिस वचन पर हम लोग मनन करेंगे उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 7 से लेके 10 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्सेस फ्रॉम 7 to 10। ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ರಿಂದ 10ನೇ ವಚನವರೆಗೆ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ 2ನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ರಿಂದ 10 ವಚನವರೆಗೆ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಹು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೇನೆ। ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಒಂದು ಶೂಲ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾಟಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಗುದ್ದುವುದಕ್ಕೆ ಸೈತಾನನ ದೂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು। ನಾನು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂತಲೇ ಇದಾಯಿತು। ಈ ಪೀಡೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು 3 ಸಾರಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು। ಅದಕ್ಕಾತನು, ನನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಸಾಕು, ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಲವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ। ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ನನಗುಂಟಾಗುವ ನಿರ್ಬಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬಹು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡೆಯುವೆನು।
ಆದುದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ನನಗೆ ನಿರ್ಬಲ ಅವಸ್ಥೆಯು, ತಿರಸ್ಕಾರವು, ಕೊರತೆಯು, ಹಿಂಸೆಯು, ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದೇನೋ ಆವಾಗಲೇ ಬಲವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲಿ. Paul's second letter to Corinthians chapter 12 verse from 7 to 10. 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10. But to keep me from being puffed up with pride because of the many wonderful things I saw, I was given a painful physical ailment which acts as Satan's messenger to beat me and keep me from being proud. 3 times I prayed to the Lord about this and asked him to take it away. But his answer was, "My grace is all you need, for my power is greatest when you are weak." I am most happy then to be proud of my weaknesses in order to feel the protection of Christ's power over me. I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions and difficulties for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. May God bless us through these holy words. दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 7 से लेके 10 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। परमेश्वर इन वचनों के जरिए हम सभी को आशीर्वाद करे। ನಡೆಸುವವ ನೀನೇ, ತಲೆ ಎತ್ತುವವ ನೀನೇ, ತಕ್ಕ ಸಮಯದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆನಿ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ, ಓ ಎಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ, ಓ ಎಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಚಿಕ್ಕವನೆಂದು ನನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಆಗದೆಂದು ನೆನೆಸಿದ ಸಮಯ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲದಂತ ಸಮಯ, ತಾಯಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸಿ, ಕಣ್ಣೀರ ನೀವೊರೆಸಿದೆ. ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ, ಓ ಎಂದು ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ.
प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की स्तुति हो। आज जो वचन हमने पढ़ा है थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, या हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है अचंभित करने वाला है। इट्स अ सरप्राइजिंग थिंग बट येट अ मीनिंगफुल लेसन टू लर्न। यानी कि यहाँ पर जो है बहुत ही मुख्य बात परमेश्वर का वचन हमें सिखाने की कोशिश करता है। पहले हम उन वचनों को जानेंगे कि वो वचन क्या कर रहा है, क्या कहता है। 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 7 से 10 वचन तक जब हम लोग पढ़ते हैं, पौलुस अपने जिंदगी का जो है कुछ अहम बातें हमें बताने की कोशिश करता है। अगर हम लोग वचन को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, 7वें वचन में हम लोग देखते हैं पौलुस कहता है कि उसने कुछ तो भी बहुत ही अच्छा दृश्य देखा है। He saw a wonderful vision, बहुत ही अच्छा परमेश्वर का बोलते ना स्वर्गीय राज्य या कुछ तो भी ऐसा रहस्य की बात जो है उसने देखा है, जो बहुत बड़ी चीज है और बहुत कम लोग इस चीज को देख पाते हैं। और यहां पर वचन हमें कहता है माइटी थिंग, यानी कि कुछ तो भी बड़ा चीज परमेश्वर के बारे में उसने जाना है, देखा है। लेकिन यहां पर वो वचन कहता है, पौलुस कहता है कि मुझे जो है एक फिजिकल एलिमेंट यानी एक कांटा चुभोया गया है। यस, एक कांटा, थॉर्न इन द फ्लेश। अगर हम लोग अलग वर्जन्स में पढ़ेंगे, फिजिकल एलिमेंट यानी एक थॉर्न, एक कांटा जो है मेरे शरीर में चुभोया गया है। ये कांटा क्यों? ताकि मैं फूल ना जाऊं, यानी कि मैं घमंड ना करूं कि मैं परमेश्वर के बारे में ये सब जानता हूं, या इस रहस्य की बात को मैं जानता हूं, या मैंने ऐसा दृश्य को देखा है, इससे मैं घमंड ना करूं। कोई भी बातों से जो है मैं अपने जीवन में घमंड को ना लाऊं या फूल ना जाऊं करके वो कांटा दिया है। और वचन हमें बताता है कि ये कांटा जो है एक सेटन मैसेंजर यानी कि शैतान की दूत की तरह जो है मेरे जिंदगी में जो है डाला गया है, मेरे जिंदगी में दिया गया है, ताकि वो मुझे घूंसे मारे, वो मुझे तकलीफ दे। ऐसा पौलुस अपने वचनों में कहता है। 8वें वचन में हम लोग देखते हैं पौलुस ने जो है प्रार्थना किया है। I prayed 3 times, 3 बार मैंने प्रार्थना किया है। अगर इब्रानियों का अगर भाषा में हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, हिब्रू में 3 टाइम्स यानी कि बहुत बार। 3 टाइम्स का मतलब है कि मैंने बहुत बार, कंटिन्यूस, मेनी टाइम्स, मैंने बहुत बार इसके बारे में जो है प्रार्थना किया है कि ये कांटा परमेश्वर मेरे शरीर से निकाल दे, मेरे जीवन से निकाल दे। लेकिन फिर भी जो है वो कांटा अभी तक मेरे जिंदगी में है, मेरे शरीर में है, और वो दर्द मैं महसूस कर रहा हूं। ये पौलुस कहता है। 9वें वचन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर वो कांटा निकाला नहीं है, लेकिन उस कांटे को लेकर ही परमेश्वर पौलुस को आगे ले जा रहा है। अपनी सेवकाई में या अपनी जिंदगी में जो है वो कांटे के साथ आगे बढ़ना जो है सिखा रहा है। और परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, गॉड सेड, परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। और मेरा सामर्थ्य जो है तेरी निर्बलताओं में जो है और अधिक जो है दिखाई देता है। यानी कि माई पावर इज ग्रेटेस्ट व्हेन यू आर वीक। ऐसा करके परमेश्वर जो है पौलुस को उत्तर देता है कि तेरी कमजोरी में मेरा बल जो है बहुतायत से दिखाई देता है। 9वां और 10वां वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि पॉल बोस्टेड अबाउट हिज वीकनेस, यानी उसकी कमजोरी के बारे में, इस कांटे के बारे में जो है, उसके तकलीफ के बारे में जो है उसने जो है गर्व महसूस किया है। वो खुशी महसूस कर रहा है कि उसके जीवन में ये तकलीफ है या ये स्ट्रेस है, क्योंकि उसने परमेश्वर का सामर्थ्य भरा हाथ या उसका बल जो उसके ऊपर है उसको उसने एहसास कर दिया। उसका सुरक्षा जो ये कांटा होने के बावजूद, ये तकलीफ होने के बावजूद जो है उसके जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा, उसका बल है करके उसने एहसास किया। और वो कहता है कि मैं बहुत संतुष्ट हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं आनंदित हूं मेरे सारे प्रॉब्लम्स के लिए, मेरे सारे अत्याचार के लिए, मेरे सारे जो है कमजोरी के लिए, मेरे सारे जो है जो भी दोष भावना है या जो भी जो है कमजोरी मेरे अंदर है, जो दर्द मेरे अंदर है, उसके लिए जो है मैं आनंदित हूं, संतुष्ट हूं करके परमेश्वर का वचन जो है यहां पर पौलुस के जुबानी हमें सिखाना चाहता है। और अंत में वो क्लेम करता है, वो घोषणा करता है, फॉर व्हेन आई एम वीक
देन आई एम स्ट्रॉन्ग। जब मैं कमजोर हूं उस समय पर मैं ज्यादा बलवंत हूं, क्योंकि परमेश्वर का बल मेरे अंदर दिखाई देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन जो है पौलुस की जिंदगी से जो है हम लोग देख सकते हैं, और पौलुस ये कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बात से परमेश्वर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हमारे जीवन में प्रैक्टिकली जो है सिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग ध्यान से इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे, ये थॉर्न या ये बोलते हैं ना कि ये कांटा जो है हर एक के जीवन में हम लोग देख सकते हैं। कांटा यानी कि अर्थ क्या है? व्हाट इज थॉर्न? थॉर्न इंडिकेट्स द फिजिकल एलिमेंट, यानी कि एक शारीरिक कोई रोग हो सकता है, कोई नेचुरल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई कमजोरी हमारे जीवन में हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हमारे जीवन में हो सकता है, कोई तकलीफें, कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी हमारे जिंदगी में जो है ये थॉर्न की रीति से हो सकता है। जब मैं थॉर्न या कांटा इस शब्द का उल्लेख करूंगा, इसका मतलब है हमारे जीवन का जो एक तकलीफ है या एक जो ऐसा जो है चीज चुभोया गया है जो मेरे जिंदगी में बहुत दर्द दे रहा है, उसे सहना जो है मुझे संभव नहीं हो पा रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है उसके कारण। व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट लेसन, बहुत ही मुख्य बात हम लोग सीखते हैं कि देयर इज अ थॉर्न। हर एक इंसान के जीवन में जो है ऐसा दर्दनाक कांटा जो है उपस्थित होता है, ऐसा दर्दनाक कांटा जो है चुभोया जाता है, और हर एक जिंदगी में जो है ऐसा कांटा, ऐसा दर्द भरा कांटा हम अपने शरीर में, अपने जीवन में उस तकलीफ को या उस कांटे को जो है हम लोग लेकर चल रहे हैं। हर एक इंसान जो हमारे समझ से परे है, जिस बात को हम लोग समझ नहीं सकते, वी वंडर, हम लोग आश्चर्य करते हैं, हम लोग जो है बहुत सरप्राइज होते हैं कि क्यों परमेश्वर ने ये कांटा मेरे जिंदगी में रखा है, ये तकलीफ मेरे जिंदगी में रखा है, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में इस रीति से रखा है। आप जो है बहुत सारे प्रीचर्स के पास या बहुत सारे कन्वेंशन मीटिंग, स्पिरिचुअल मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, बहुत सारे किताबें पढ़ते हैं, बट स्टिल यू फेस द सेम क्वेश्चन। फिर भी वो सवाल आपकी जिंदगी में ऐसे रह गया है कि ये कांटा परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्यों रखा है? Why this thorn in my life, oh Lord? करके हम लोग जो है हमारे जिंदगी में खुद हम लोग देख सकते हैं। हम लोग बहुत बार अपने आप से ये बातें करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कांटा है, ये जो पर्टिकुलर तकलीफ या ये प्रॉब्लम जो मेरे लाइफ में आपने दिया है, इसको हटा दो, इसके अलावा जो है कोई भी कांटा हो मैं सह लूंगा, लेकिन ये कांटा मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, मुझे बहुत दर्द दे रहा है, ये परेशानी मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, ये बहुत दर्दनाक है करके हम लोग कहते हैं। ये जो तकलीफ आप लोग सह रहे हैं, अनेक तरीके के अलग अलग प्रॉब्लम जो है हम लोग सहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में इस तरीके से जो है उस कांटे को देखते हैं। हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं, हम लोग बहुत बार प्रार्थना करते हैं कि ये कांटा, ये तकलीफ मेरे जीवन से निकाल दे, लेकिन फिर भी जो है कोई उत्तर हमें नहीं मिलता है। फिर हम जो है पास्टर को या प्रीचर्स को हम लोग ब्लेम करते हैं, दोष लगाते हैं कि ये अच्छा प्रीचर नहीं है, क्योंकि ये मेरे सवाल का जवाब जो है नहीं दे पा रहा है, जो मेरे जीवन में तकलीफ दे रहा है, कि क्यों परमेश्वर ने ये पर्टिकुलर कांटा या ये तकलीफ मेरे जीवन में जो है रखा है, इससे क्यों मुझे लेकर जा रहा है, इससे क्यों मैं दर्द महसूस कर रहा हूं। आप कुछ भी कर लो, आप किसी के भी पास जाओ, बहुत बार जो है हमें उस सवाल का जवाब कभी भी नहीं मिलेगा। यू विल नेवर गेट द राइट आंसर। और मैं ये तक कहूंगा कि हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम लोग जान सके कि ये कांटा पर्टिकुलर परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्यों रखा है, या परमेश्वर को हम लोग ऑर्डर दे, कमांड दे, क्योंकि ये बात हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग नहीं जान सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर इस बात को जानता है कि वो कांटा आपके जीवन में क्यों रखा गया है। इट इज समथिंग इन योर लाइफ। हो सकता है वो कांटा जो है किसी कारण से आपके जीवन में घुसा है, या किसी के जरिए आपके जीवन में घुसा है। बहुत बार हम लोग कहते हैं ना कि ये मेरा पक्का दोस्त है, लेकिन ये जिस पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा था, वो दोस्त मुझे धोखा देगा। ये जो है बहुत चुभ जाता है, हमें बहुत तकलीफ होता है, और उससे हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। यस, ऐसा कांटा जो है हमारे जीवन में, ऐसा तकलीफ, परेशानी जो है अलग अलग रीति से हम लोग देख सकते हैं। हो सकता है ये कांटा आपके दोस्त के रूप में जो है आपको चुभाया है,
या आपके कोई फैमिली मेंबर्स, कोई आपका पड़ोसी आपको उतना तकलीफ दे रहा है या कांटे के रूप में जो है आपको चुभ रहा है। हो सकता है आपका पति, आपकी पत्नी जो है आपके जीवन में कांटे की तरह चुभ रही है या चुभ रहा है। आपके बच्चे वो हो सकते हैं, या आपका कोई रिलेटिव, कोई फैमिली फ्रेंड, या कोई भी हो सकता है, किसी के भी जरिए जो है ये तकलीफ जो है आपको हो रही है। अब जस्ट बोलते ना 2 सेकंड का गैप लेके आप सोचिए, अरे ये तकलीफ मेरे जीवन में क्यों है, बहुत बड़ा तकलीफ है, बहुत कठिन जो है दर्द ये दे रहा है। यस, किसी के भी जरिए ये आ सकता है, लेकिन आपको कभी उत्तर नहीं मिलता है कि क्यों ये तकलीफ, क्यों ये कांटा मेरे जिंदगी में जो है परमेश्वर ने दिया है। और इस दर्द से जो है हम छुटकारा भी नहीं पा रहे हैं, छुटकारा भी नहीं मिल रहा है हमें, कि द फैक्ट रिमेन्स, ये सच्चाई हमारे जीवन में है कि ये कांटा मेरे जिंदगी में चुभोया गया है और ये कांटा मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। इट गिव्स अनबेरेबल पेन, जो दर्द मैं सह नहीं सकता है वैसा दर्द जो है मुझे हो रहा है इस तकलीफ के कारण या इस कांटे के कारण। ये कांटा हो सकता है, ये कांटा जो है आपके जीवन का हर एक सुख, हर एक शांति को जो है छीन लिया है, आपको परमेश्वर के वचन से ये दूर कर रहा है। आप जो है बहुत ही कंफ्यूज्ड है, आप बहुत ही बोलते ना अचंभित है, कंफ्यूज्ड है कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं। हो सकता है आप बहुत अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं इस कांटे की वजह से या इस तकलीफ की वजह से, और आप अपने दिल में, अपने अंदर झांक कर जो है देखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप जो है अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, ऐसे पाप जो आप जानते हैं और ऐसे भी पाप जिससे आप अनजान है, पता ही नहीं है मैंने पाप किया है, उसके लिए भी जो है आप क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हर समय पर जब आप पाप की क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर आपको जो है वो पाप से क्षमा करता है, छुटकारा देता है और नयापन देता है। लेकिन ये कांटा मेरे जिंदगी से नहीं जा रहा है, ये सवाल हमारे जीवन में जो है हमेशा से हम लोग देख सकते हैं। ऐसा एक कांटा हमारी लाइफ में हमेशा होता है, एक कांटा या बहुत सारे कांटे हो सकते हैं, या एक कांटा जो है बोलते ना रिलीफ मिलते ही दूसरा कांटा चुभ जाता है, क्योंकि कभी भी बिना तकलीफ के या बिना प्रॉब्लम के, बिना कांटे के जो है हम लोग अपनी जिंदगी को नहीं देख पाते हैं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ जो है चुभोया जाता है उसका, लेकिन आंसर ये क्यों है ये हम लोग कभी भी नहीं जान पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मृत्यु तक भी जो है इसका कारण या इसका उत्तर हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। एक स्कॉलर कहता है कि शायद इसका आंसर जो है हम मरने के बाद जब परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, यीशु मसीह को फेस टू फेस, मुखामुख हम लोग देखेंगे, उस समय पर शायद यीशु मसीह हमको बताएगा कि ये कांटा आपके जीवन में क्यों रखा गया है। लेकिन परमेश्वर इस कांटे के जरिए आपको कुछ सिखाना चाहता है, उसके अनुग्रह को जो है बताना चाहता है। गॉड्स ग्रेस, ही वांट टू टीच यू अबाउट हिज ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में जो है इस कांटे के जरिए। और ऐसे बहुत सारे लेसन्स है या बहुत सारे चीजें हैं जो हम लोग इस कांटा जो चुभने के जरिए या इस दर्द के जरिए जो है हम लोग सीखते हैं, जो नॉर्मली हम लोग नहीं सीख पाते हैं। तो ये कांटा हमें कुछ सिखाने के लिए है, इस बात को हमको जानना जरूरी है। हो सकता है उसका सही कारण हम लोग नहीं जान पाएंगे, उसका आंसर कि परमेश्वर ने क्यों रखा ये हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर इसका कारण जानता है और उसके अनुग्रह को दर्शाने के लिए ये कांटा आपके जीवन में रखा है। अगर इसका उत्तर हम लोग ढूंढने की कोशिश करें, हम लोग परमेश्वर के वचनों से अगर समझने की कोशिश करें, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग क्या करें कि एक कांटे का कारण हम लोग जान सके। परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा, कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 7 से लेकर 10 वचन, पौलुस हमें बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करता है। ये कांटा जो है परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सिखाने। हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर के बारे में, उसके अनुग्रह के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन नहीं, ये कांटा इसलिए रखा गया है ताकि हम लोग जो है अपने जीवन में घमंड ना करें। हम लोग को पता चले कि मैं कमजोर हूं, आई एम अ लिमिटेड क्रिएशन, कि अगर सब कुछ अच्छा है तो हम अपने आप को जो है बहुत ही सेल्फ रिलायंट महसूस करते हैं। दिस थॉर्न इज इन योर लाइफ, ये कांटा आपके जीवन में है कि आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें।
ये कांटा इसलिए है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर जो है दिखाई दे, हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझे, बिकॉज उसके अनुग्रह से ही हमारी जिंदगी चलती है और हम आज जिंदा है सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से। आज के इस कोरोना वायरस ने जो है हमें बता दिया कि इंसान की जिंदगी जो है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इट इज लिमिटेड, कि हम लोग कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं इतना जीऊंगा या इतना करूंगा, कोई भी प्लान कभी काम नहीं आएगा। झटके में जो है जिंदगी चली जा रही है। इसलिए वो कांटा या वो दर्द जो हमारे जीवन में है वो परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाने के लिए कि हम एक लिमिटेड क्रिएशन है, लेकिन उसका अनुग्रह हमारे जीवन में हमेशा से रहता है। सो दिस थॉर्न, ये कांटा जो है हो सकता है आपको बहुत दर्द दे रहा है, लेकिन ये कांटा जो है आपके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को एक अद्भुत रीति से सिखाना चाहता है। ये बताना चाहता है कि आप इंसान होने के नाते एक कमजोर प्राणी है, एंड टू रिवील गॉड्स पावर, परमेश्वर का सामर्थ्य, उसका बल आपके जीवन में जो है अद्भुत रीति से जो है दिखाने के लिए, सिखाने के लिए परमेश्वर ने जो है ये कांटा रखा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप कमजोर है उस वक्त परमेश्वर का जो है सामर्थ्य बहुतायत से हमारे जीवन में बरसता है। परमेश्वर की ताकत को हमारे जीवन में देखने के लिए ये कांटा है। इसलिए पौलुस कहता है ये कांटा है तो भी मैं खुश हूं, ये तकलीफ है तो भी मैं खुश हूं, ये अत्याचार है, ये प्रॉब्लम है, ये स्ट्रेस है, फिर भी मैं खुश हूं। आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में अलग अलग तरीके से जो है हमारे जीवन में जो है हम लोग उन कांटों को देख सकते हैं। कोई अपने जॉब के स्ट्रेस से प्रॉब्लम है, कोई अपने फैमिली को लेकर प्रॉब्लम है, कोई अपनी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर प्रॉब्लम है, कोई बहुत साल से आज तक उस तकलीफ को लेकर जो है चल रहा है, कोई जो है नए नए प्रॉब्लम्स को हर रोज देखता है कि कोई एक कांटा चला जाता है दूसरा कांटा छूट जाता है, या किसी के जीवन में ऐसा कांटा जो सालों से चलता आ रहा है आज तक जो है वो कांटा नहीं जा रहा है। आप एक सच्चाई को समझना जरूरी है, ये कांटा आपके जीवन से कभी नहीं निकलेगा। अगर परमेश्वर ने ये कांटा आपके जीवन में रखा तो इस कांटे के साथ जो है जिंदगी को जीना सीखना आवश्यक है। आज परमेश्वर का वचन वही बताता है, पौलुस ने ये किया और वो आनंदित है, इसलिए आखिर में वचन में लिखा है मैं संतुष्ट हूं, मैं आनंदित हूं उन सारे प्रॉब्लम्स, उन सारे तकलीफों के लिए, उन सारे कठिनाइयों के लिए, उन सारे अत्याचारों के लिए, उन सारे निर्बलताओं के लिए। यस, पौलुस ये हमें सिखाने की कोशिश करता है। परमेश्वर का सामर्थ्य हमें समझना चाहिए कि हम जो है उस कांटे के बारे में या उस तकलीफ के बारे में जो है कंप्लेंट ना करें, दोष ना लगाए परमेश्वर के ऊपर या किसी के भी ऊपर, या मैं यहां तक कहूंगा कि हमारा फोकस उस कांटे के ऊपर मत लेकर जाइएगा, आपका ध्यान उस कांटे के ऊपर नहीं लेकर जाइएगा। इसके बदले में जो है आप अपने ध्यान को परमेश्वर के अनुग्रह पर लेकर जाइए, परमेश्वर का सामर्थ्य जो आपकी सुरक्षा करता है उसके ऊपर लेकर जाइए। ये कांटा आप सालों से लेकर चल रहे हैं, ये तकलीफ आप कितने दिनों से आप ये सह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी आगे चल रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह भरा हाथ आपके ऊपर है, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य कर रहा है। इस कांटे के साथ जो है परमेश्वर आपको जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहता है। आप अपना ध्यान उसको पर लेकर जाइए कि परमेश्वर का अनुग्रह फिर भी मेरे साथ है, फिर भी ये सब चीजें परमेश्वर ने जो है मुझे दिया है, इतने ब्लेसिंग्स को परमेश्वर ने मुझे दिया है। हम लोग जो है हमेशा अपना फोकस, अपना ध्यान उस कांटे की ओर लेकर जाते हैं, लेकिन उस कांटे के साथ साथ परमेश्वर ने अनुग्रह, उसका ब्लेसिंग्स, उसका साथ, उसका प्रोटेक्शन, उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में दिया है। तो वो कांटा जो है हमारे जीवन में एक ब्लेसिंग को लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उस कांटे के साथ अब जिंदगी आगे बढ़े। जिंदगी भर वो कांटा नहीं निकलेगा, शायद ऐसे बहुत सारे कांटे हमारे जीवन में हैं जो परमेश्वर नहीं निकालेगा। हम बहुत बार प्रेयर करते हैं या हम लोग सिखाते हैं कि प्रार्थना करो ये तकलीफ दूर हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है कुछ कारण के वजह से। शायद वो कारण आप नहीं जान सकेंगे अभी, वो कारण आप नहीं समझ सकते हैं अभी, लेकिन फिर भी उस कांटे के साथ परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, वो मंडरा रहा है आपका, वो परमेश्वर का सामर्थ्य या उसका अनुग्रह आपके ऊपर, उस तकलीफ के साथ, उस कांटे के साथ परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। सो गॉड, परमेश्वर क्या कहता है इस बात को सुनिए, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू।
परमेश्वर जैसे पौलुस को कहता है, आज आपको कहना चाहता है कि मेरा अनुग्रह आपके लिए बहुत है। इस तकलीफ में भी जो है आपको मैं आगे लेकर जाने वाला हूं। तो आप अपना ध्यान तकलीफ की ओर नहीं, परमेश्वर के हाथ की ओर, परमेश्वर के सामर्थ की ओर लेकर जाइए, क्योंकि वो अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करने वाला है। इसलिए पॉल क्लेम करता है, वो कहता है वचन में, अगर आखिर में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर पॉल क्लेम्स, फॉर व्हेन आई एम वीक आई एम स्ट्रॉन्ग। जब मैं कमजोर हूं, जब मैं निर्बल हूं, उस समय पर मैं बहुत ज्यादा सामर्थ्य हूं। क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर का बल मेरे निर्बलताओं में बहुत आयत से दिखाई देता है। यानी आपके जीवन में अगर कोई कांटा चुभ रहा है या कोई तकलीफ आपको परेशान कर रही है, ये सह नहीं पा रहे, इसका मतलब है कि परमेश्वर जो है आपकी वो कमजोरी में, आपके दर्द में परमेश्वर का अनुग्रह या उसका पावर बहुत आयत से आपके जीवन में होने जा रहा है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं, मैं संतुष्ट हूं। आपको ये जिंदगी जीना सीखना जरूरी है, क्योंकि हर कांटा आपके जीवन से निकलने के लिए नहीं है। बहुत सारे कांटे आपके जीवन में रखे गए हैं ताकि उसके जरिए आप कुछ सीख सके, उसके जरिए परमेश्वर के अनुग्रह को एहसास कर सके, उसके जरिए परमेश्वर के सामर्थ को आप देख सके। इतना कांटा चुभने के बावजूद भी, इतना प्रॉब्लम तनाव देखने के बावजूद भी आज परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। आज परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है, परमेश्वर की सुरक्षा आपके ऊपर है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देना जरूरी है और पौलुस की तरह हमें कहना जरूरी है कि जब मैं कमजोर हूं, जब मैं दर्द में हूं, जब मैं तकलीफ में हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि तब परमेश्वर का बल मेरे अंदर काम करता है। For when I am weak, I am strong, because God's power is working in us mightily. God's power is working in me mightily. परमेश्वर का जो पावर है, जो सामर्थ्य है मेरे अंदर, अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है, क्योंकि उसका अनुग्रह आपके जीवन में बहुत है, आपकी जिंदगी को आगे ले जाने के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करे इन वचनों के जरिए। आमीन। कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सर्व शक्तियों से
जब साथ है हमारे वो सर्व शक्तियों से, जब साथ है हमारे हर काम उसके रहते, हर रिस्क हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आइए इस समय में जो है हम लोग अंतिम प्रार्थना को करेंगे और इस ऑफरिंग के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे जो आप जो है अपने घरों पर एकत्रित कर रहे हैं, हम उस दान के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದಾದ ನಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಚನದಿಂದ ಈ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಸಲ್ಪಡೋದು। ಪ್ರಾರ್ಥನಾ हम लोग करेंगे, उसके बाद लॉर्ड्स प्रेयर प्रभु की प्रार्थना कहेंगे, उसके बाद आशीष वचन से आज की इस आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೇ। ರಾಜದಿ ರಾಜದೇ ದೇವದಿ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ನಿನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಪರ್ವತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಬರುತ್ತದೆ। ನನ್ನ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಶೂಲವನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಮುಳ್ಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಆ ಪತ್ರೆಯನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ। ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನೆ, ಆ ಮುಳ್ಳಿನ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಕರ್ತನೆ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ। ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಕಡೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಡೆ ಕರ್ತನೆ, ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ದಯೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ। ಈ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾತಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ। ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುವಂತೆ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ। ಈ ಕಾಣಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡು, 30, 60, 100ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ, ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವರಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ನೂತನವಾದ ವರ್ಷ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ಆನಂದಗಳನ್ನು ತರುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ನೂತನವಾದ ವರ್ಷವಾಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ, ಲೇಬರ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ। ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಇರಲಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಎಲ್ಲಾ ಸಭಿಕರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ। ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೆನ್।
ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮಗೆ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲವಿನದೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಸಹಾಯಕರಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸವು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಕ್ರಿಸ್ತ್. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಭಿಗೂ.